the situation today is that Technicolor India is clearly financially and operationally not moving forward. And we've reached a stage where, unfortunately, we've been unable to function as an organization. We would not be able to release this to pay salaries or all the other dues, which are quite significant across the company in India. We have asked HR to prepare and share documents that will acknowledge your experience, your position or role, your tenure and service, how long you've been with the company, and your compensation. Yes, this is the truth. Technicolor shuts its operations worldwide, including MPC, Mr. X, The Mill, Micros, and whatever stream they had. And it's globally. Yes. मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था एंड अगेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन बिकॉज as a content creator from over I think 8-10 years, I thought it is my duty to tell you guys that yes, Technicolor is no more, and we will discuss why it happened, right? So I did some research and came to know this is that the shutting down of any VFX studio is not new, right? So you can name it like Digital Domain, or it is Prana or Rhythm and Hues. Every big studios normally ऐसे ही बंद हो जाते हैं रातों रात. And I remember when I started my career and my dream was to join Rhythm and Hues. And Rhythm and Hues delivered multiple award-winning films, including Life of Pi. And after Life of Pi won Best VFX Oscar, after that Rhythm and Hues was shut. Not after that, I think before that Rhythm and Hues was bankrupt. Same with Prana and now Technicolor. And worldwide, as per my information, more than 10,000 artists are jobless now. Suddenly, in one night. So yes, main problem is we had a video of Biren Ghosh, I think India's head. He was heading India Technicolor, and he said that we were the Technicolor running in India, but every decision was made by a headquarter which is in France, and our work was just work and deliver the project and just do the billing and they will give the money as per him. And suddenly they stopped giving us money, and now we are finally on the stage or on the verge of closing this studio, right? कहना बहुत आसान है एक ऑनलाइन कॉल पे आके कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम बंद कर रहे हैं, कल से आप लोग काम करने मत आओ. इंडिया के 3,000 आर्टिस्ट जॉबलेस हुए हैं एंड इट्स वेरी सैड. किसी की EMI चल रही होगी, किसी ने घर खरीदा होगा, कोई फैमिली लेके शिफ्ट हो गया है वहाँ पे, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे आर नॉट एबल टू पे सैलरीज. लाइक फेब की सैलरी दे आर नॉट एबल टू पे. आई एम नॉट श्योर उसके पहले की सैलरी आई कि नहीं आई है. इन हिज वीडियो ही सेड दैट जो भी आपके पर्क्स थे लाइक मेडिकल एंड बाकी के जो इंश्योरेंस जो होती हैं वो जुलाई तक शायद वैलिड रहेंगी या जून तक, आई एम नॉट श्योर. बट वॉट अबाउट सैलरी, उसका करेंगे क्या? बहुत कुछ है बात करने को. बट अगेन अभी होगा क्या इसका, इससे हुआ क्या? सडनली जो 3,000-4,000 लोग या वर्ल्ड वाइड 10,000 लोग जॉबलेस हुए हैं एट ए टाइम, जॉब तो उनको मिलेगी नहीं, राइट? मल्टीपल posts I am seeing on LinkedIn that I am jobless, I need a job. Many of my friends started posting, like इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद सडनली 20-20 साल 15-15 साल के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आई एम ओपन टू वर्क. सो दिस इज वर्स्ट. सी, वी नीड टू फिगर इट आउट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दैट, राइट? I have seen multiple posts of multiple companies. They started posting that anyone who is affected by Technicolor layoff can connect with them. I won't say name, but
मेजॉरिटी में बड़े कंपनीज जो बचे हुए हैं अभी, वो उन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है. आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी द नेगोशिएशन, बट डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट दैट. एंड जॉब अभी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है, जॉब जैसे ही मिले अब ले लो. नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाइक दे विल नेगोशिएट, जो नई जगह जाओगे दे विल नेगोशिएट, बट आई थिंक यू शुड ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी कमिंग इन द वे, राइट. दूसरा क्या है, बहुत लोग अभी ये बोल रहे हैं कि टेक्निकलर में बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट थी. हो भी सकता है मिसमैनेजमेंट, लाइक दिस इज़ अ हिस्ट्री ऑफ टेक्निकलर. लाइक एक बार प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो बहुत सारे मास लेऑफ्स बहुत सारे हुए थे, पास्ट में भी हुए थे. सडनली आप अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन बोलो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यू हैव टू रिज़ाइन. सो ये भी हुआ है टेक्निकलर में, आई नो दैट. एंड सबसे मज़े की बात है कि अभी जस्ट मुफासा रिलीज़ करने के बाद टेक्निकलर ने बैंकरप्सी बोल लो या शॉर्टेज ऑफ मनी बोल लो, दे डिड दैट. सो सी, किसी को ब्लेम नहीं करना है, बट क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए कैपेबल हो, राइट. लाइक सडनली मैं एक दिन आऊँ बोलूँ कि भैया कंपनी बंद हो गई, दिस इज़ नॉट अ वे, राइट. सो किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. मतलब हमारे फील्ड में फिर स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी. हाउ वी आर सपोज टू सर्वाइव. लाइक इतनी बड़ी कंपनी बंद होगी तो बाकी कंपनी का तो कोई भरोसा ही नहीं है. सो या बहुत तकलीफ़ है. मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग फ़ोन करके मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये सही है नहीं है. तो आई थॉट यस, जस्ट टू मेक अ वीडियो. एंड दिस इज़ वर्स्ट डे ऑफ वीएफएक्स इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. ओके, अब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ थी. जितना मैंने रिसर्च किया, सी दो चीज़ें हैं. एक साइड आप देखो, एक साइड क्या है, बहुत सारे ऐसे वीएफएक्स के इवेंट्स हुए हैं पास्ट में. जैसे टेक्निकलर के बंद होने के एक दो दिन पहले ही बैंगलोर में ही जीएफएक्स का एक इवेंट हुआ था, जिसमें टेक्निकलर के बड़े लोग जाते हैं और वीएफएक्स इंडस्ट्री और वीएफएक्स के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. एंड अगले ही दिन वो कंपनी बंद हो जाती है. सो दिस इज़ नॉट राइट. अगर इतनी बड़ी कंपनी बंद हो रही है तो जो बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं वहाँ पे, दे शुड हैव नोन कि भैया 2-3-6 महीने में कंपनी मेरी बंद होने वाली है. सो ऑब्वियस आई एम नॉट गोइंग एनी दैट काइंड ऑफ इवेंट, एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि कंपनी बच जाए. बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ. प्रीवियसली बंद होने के 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए जहाँ पे बीरेन घोष गए हैं वहाँ पे वीएफएक्स इंडस्ट्री और वीएफएक्स के फ्यूचर के बारे में बात करी उन्होंने. बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं एआई की वजह से तो नहीं हुआ है. सो डायरेक्टली ये एआई रीज़न नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ. सबसे बड़ा कारण है ऑब्वियस राइटर स्ट्राइक. कोविड आया, कोविड के बाद राइटर स्ट्राइक्स हुआ. राइटर स्ट्राइक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ऐसे स्टूडियोज़ को या किसी भी स्टूडियोज़ को बंद होने के लिए, राइट. मैं ब्लेम नहीं कर रहा राइटर स्ट्राइक्स को, वो अपनी जगह पे ठीक है. बट हुआ क्या, इस चीज़ों की वजह से हुआ क्या, कंपनी जो पुराने टाइम से चल रही थी वो कंपनी चल रही है, बट सडनली एक छोटे छोटे स्टूडियोज़ का बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, राइट. तो क्या हुआ, काम जो एक बल्क में बड़ी कंपनी को जा रहा था अब डिवाइड होने लगा. बट कंपनी के खर्चे वैसे ही हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने पूरी बिल्डिंग लीज पे ले रखी है, बट खर्चे सेम, काम कम आने लगा, तो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हुआ. और अगेन एक ऐसा दिन आ गया कि टेक्निकलर कंपनी जैसी बड़ी कंपनी बंद हो गई, क्योंकि कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी. इसके 2-3 सॉल्यूशन हो सकते थे. एक तो मेरे को लगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कट डाउन करना चाहिए था, या आप शिफ्ट्स में काम करवा सकते थे, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ज़्यादा किया जा सकता था, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको छोटा किया जा सकता था, या वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा वर्कआउट किया जाता कि किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम दे दे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा हो वो बचाया जा सके. अननेसेसरली ट्रैवल, जो कंपनी के बड़े लोग ट्रैवल करते हैं, जैसा आप सबको पता होगा, फॉरेन भी ट्रैवल्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, जस्ट फॉर यूं ही. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं आपको कट करके फिर शायद कंपनी को और ज़्यादा लंबा खींच सकते थे. बट वो नहीं हुआ शायद. ये मेरे ओपिनियंस हैं, अगेन आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो. बट या ये 2-3 चीज़ें हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं. मेरे हिसाब से इस तरीके से काम करना चाहिए था. यू नेवर नो. अभी भी लास्ट में उन्होंने बोला कि अभी बहुत सारे लोगों से मीटिंग कर रहे हैं,
सर्वाइवल की उम्मीद है, बट सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। जो भी बिलोंगिंग्स हैं आप अपने बारी का इंतज़ार करें, उस डेट पे जाके अपने अपने बिलोंगिंग्स को आप फैसिलिटी से निकाल लें। सो ये अपडेट है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। जो आगे कुछ ऐसा अपडेट आता है डेफिनेटली आई लेट यू नो। एंड जो भी इससे अफेक्ट हुए हैं आई से प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, समथिंग विल हैपन गुड। एंड आप अभी के जो स्किल्स हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उस स्किल को या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा स्किल ऐड कर सकें। सो दैट विल बी वेरी गुड। इस टाइम को अगर आप अपने स्किल को इन्हांस करने में लगाओगे, जैसे माइट बी आई रिकमेंड एक्सप्लोर वर्चुअल प्रोडक्शन अगेन। इट्स अ बूमिंग थिंग, बट अगेन आई एम नॉट saying it will work, but you have to figure out a different skill set so that आपके पास 2-3 ऑप्शन रहें। एंड डेफिनेटली मैं अपने चैनल के थ्रू अगर कुछ भी ओपनिंग्स वगैरह आती हैं मैं अपने डिस्कॉर्ड चैनल पे पोस्ट करूँगा, मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। जिस तरीके से भी मदद हो सकती है मैं डेफिनेटली आप लोग की मदद करूँगा। और कुछ टेक्निकल के बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे आती है डेफिनेटली आई लेट यू नो। सो दैट वाज द वीडियो। मेरा ओपिनियन है, अगेन किसी और का नहीं है, टोटली इट्स माइन। एंड अगर आप सहमत हैं, अगर आप चीज़ों से लगता है कि इस पे और बात करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड डेफिनेटली विल टॉक ऑन दिस टॉपिक अगेन। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।